Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and sound. This is Kanchan ma'am back here with a new session of basic geometric ideas. Okay, so far we have done two sessions जिसमें हमने कुछ basic ideas, कुछ quadrilateral circles के बारे में पढ़ा है. आज उसी को थोड़ा सा concept उसी को बढ़ाते हुए we will be learning something new. So those who are new here, kindly drop me a message. Hello, ma'am. Okay, until then, let me tell you about Swiftland. Swiftland is, India's most sincere learning destination. Why? Because it is providing 100% live interactive classes, personalized attention batch with maximum 6 students, a dedicated academic mentor team is there, which is on the whole tracking and working on your students' progress, on your progress actually. Syllabus, CBSE, ICSE and State Board, we cover all the syllabus according to the demands. Now detailed progress report. So detailed progress report will always be in the form of PTM. सबको पता है parents teacher meeting होती है जिसमें what we do actually हम करते हैं आपकी शिकायतें, है ना? बिल्कुल नहीं. We just talk about your growths, your lackings and how you're doing in class homeworks. आप क्लास के homework में क्या कर रहे हैं, assessments में क्या कर रहे हैं, monthly test में how you're performing and is there any growth. So for all these discussions we have PTM. उसके बाद आता है अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट. अब जैसे ही नाम प्रैक्टिस का है ना, चैप्टर पढ़ा दिया. अब अगर मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया और आप कुछ टाइम के बाद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे याद है कि नहीं है मैम ने क्या पढ़ाया था, am I clear with all the concepts or not? And I think concepts are the thing जो एक बार clear हो जाते हैं ना, दोबारा कभी आप उसको मतलब भूलते नहीं है. So that's why I'm saying that Swiftlearn is the only platform where the concept based learning is possible. So we are not around making you to ratify the things. We are just visualizing the things so that आपको भी वो समझ में आए. ठीक है. सो प्रैक्टिस टेस्ट की बात हो रही थी तो अनलिमिटेड है, सब्जेक्टिव भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं. योर विश, गो फॉर दैट. Swiftlearn Academic Test Series. Once you will be the Swift learner or you will be Swift learner, तो both. Once you will be in Swiftlearn, then you will be Swift learner. तो आप इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं and for this at the single time you will be competing with different students of the same platform. So सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं so that you will never miss any update. Hit the like button, इसको ब्लैक करना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा मैम को कि बच्चों को सेशन पसंद आ रहा है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, एज आई टू ऑलवेज टोल्ड माई सेशन कि बहुत सारे स्विट्जरलैंड में बहुत सारी वर्कशॉप, बहुत सारा डे बाय डे कुछ ना कुछ न्यू वी आर गेटिंग फॉर यू गाइज. सो जस्ट प्रेस बाय बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट. तो फिर से आ गया आपका ज्योमेट्रिक आइडियाज, राइट? बट टुडे इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वन ऑल्सो. So, where we use geometry in our real life, from the last two classes, we are learning what is geometry, what is circle, what is quadrilateral. But I always talk about कि use कहाँ पे करेंगे. तो use is very, the moment you will be learning it use, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि geometry actually क्या होती है. So today we will be comparing between the 2 dimensional and the 3 dimensions, net of solid figures and viewing figures from the different angles. So do you remember that what we have done in the last class? Yes, we have learned all about the vertices, angles, quadrilaterals. Although this is not a quadrilateral, this is a hexagon. Why it is a hexagon? Because it is having 1, 2, 3, 4, 5, 6 sides. So if I'm talking about vertices, adjacent vertices. So A is adjacent to B and adjacent to F also. At the same time, C is adjacent to B and D also. And D is adjacent to C and E also. ओके. सो वी कैन से दैट कि एडजेसेंट का मतलब क्या है. एडजेसेंट का मतलब है कि भाई पड़ोसी पड़ोसी हैं, कुछ कुछ शेयर कर रहे हैं, तो जो शेयर कर रहे हैं वो एडजेसेंट ही बन जाएगा. क्लियर? बताया हुआ है आपको प्रीवियस क्लासेस में. चलो ठीक है. द मीटिंग पॉइंट क्या कहलाता है? मीटिंग पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक. वी हैव लर्न अबाउट द ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स, बट you observe that various shapes are, everything is, I told you, whenever you will, आप एक अपने बस रूम को ना आंखें घुमा के देख लीजिए, आपको सब कुछ दिखेगा कि सब कुछ तो 3D है, सब कुछ तो 2D है, सब कुछ में ज्योमेट्रिकल शेप है. आप किसी का टॉप देखो तो ज्योमेट्रिक फिगर दिखेगा, किसी को साइड से देखो तो ज्योमेट्रिक फिगर दिखेगा. माय लैपटॉप की स्क्रीन भी ज्योमेट्रिक फिगर है, मेरा पेन भी एक ज्योमेट्रिक फिगर है, सिलिंड्रिकल. राइट. सो एवरी सिंगल थिंग इन योर अराउंड योर रूम, अराउंड योर, मतलब कहाँ पे भी आप चले जाओ, क्लासरूम में, कहीं भी, प्लेग्राउंड में, एवरी सिंगल थिंग हैज अ ज्योमेट्री इन दैट. तो पढ़ लेते हैं आज भी, जब इतना कुछ है इंपॉर्टेंट तो.
सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट थ्री डायमेंशनल शेप। अब थ्री डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं? अब बोलो मैम डायमेंशन क्या होता है? सो डायमेंशंस आर बेसिकली हाउ वी कैन मेजर, हाउ वी कैन मेजर एनीथिंग, ये हमें डायमेंशंस बताता है। ठीक है, तो चलो लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू अ पेज। मैं आपको एक पेज देती हूँ। चलो ये एक पेज है, इसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं? कितना कितना इसकी कितनी लेंथ और कितनी ब्रेथ है, आप इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं ना। तो इसके मेजरमेंट के लिए, इसके मेजरमेंट के लिए आपने क्या किया है? लेंथ और ब्रेथ कंसिडर करी है। तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब इसका आप मेजरमेंट एक लेंथ की तरफ से कर सकते हैं, एक ब्रेथ की तरफ से कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसका कोई मेजरमेंट नहीं कर सकती ना। इसका एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। आप बोलोगे मैम एरिया पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर बात निकालना अलग बात है, लेकिन एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, क्या डायमेंशंस चाहिए होंगे, क्या साइड्स चाहिए होंगी? दैट इज कॉल्ड टू बी द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो जब भी डायमेंशंस की बात आती है तो मेजरमेंट कि आप उस पर्टिकुलर फिगर को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी द डायमेंशंस। राइट, अभी मैंने आपको बोला कि ये एक टू डायमेंशनल, ये टू डायमेंशन है। क्यों? इसको हाथ में रखो। क्या ये सिर्फ आपके हाथों के बीच में आ सकता है और आप अपना हाथ बंद कर सकते हो? यू कैन यू क्लैप? आई कैन क्लैप, आई कैन क्लैप। तो दिस इज अ टू डायमेंशनल फिगर। क्यों टू डायमेंशनल फिगर है? क्योंकि इसके और मेरे, इन मेरे दोनों हाथों के बीच में कुछ भी स्पेस नहीं आ रहा है। दैट इज कॉल्ड द टू डायमेंशनल फिगर। बट जैसे ही मैं थ्री डायमेंशनल फिगर की बात करूंगी, आई विल बी हैविंग दिस बुक। द मोमेंट आई विल कीप दिस ऑन माई हैंड, मैं इसको अपने हाथ में रखूंगी। देखो हाइट आ गई, मैं अपने दोनों हाथ को नहीं मिला पा रही हूँ। आई कांट, बिकॉज यहाँ पे कुछ हाइट आ गई। तो दिस इज द टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल फिगर। तो इस बुक का जो सिंगल पेज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बुक का जो सिंगल पेज है ये टू डायमेंशन है। बट जब मैंने बहुत सारे पेजेस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मैंने एक पाइल अप बना दिया, दैट बिकम्स अ थ्री डायमेंशनल फिगर। सो ऑलवेज रिमेंबर कि थ्री डायमेंशनल फिगर्स में क्या होती है? हाइट होती है। ठीक है, अभी मैंने ठीक है, अगर मैं एक बॉक्स की बात करूँ, हाइट है ना इसकी, हाइट का मतलब क्या होता है? आप अपनी हाइट मेजर कैसे करते हैं? यू जस्ट आप खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और मेजर करते हैं। तो आप हाइट कैसे मेजर करते हैं? स्ट्रेट वॉल के अपर साइड में, आप फ्लोर पे खड़े होते हैं और अपर साइड में। तो वही हाइट होता है कि बेस से आप कितनी ऊपर जा रहे हैं। बेस हो गया ये बेस है, ये बेस है। इस बेस से आप कितना ऊपर जा रहे हैं, दैट विल कॉल टू बी नथिंग बट अ हाइट। सो वी कैन से दैट थ्री डायमेंशनल फिगर्स में हमारे पास थ्री डायमेंशंस होते हैं। व्हाट आर द थ्री डायमेंशंस? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। कमरा देखिए अपना, फ्लोर आपका रेक्टेंगल है। ओके, फ्लोर आपका क्या है? रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल फ्लोर में अगर आप कमरे की हाइट, आपका कमरा कितना हाइट का है ना? कई जगह जब हम विलेजेस में जाते हैं तो जो रूम्स होते हैं ऊपर छोटी हाइट के होते हैं, बट यहाँ पे आप देखो कितना। तो ये हाइट आपका फ्लोर से ऊपर को जा रहा है, दैट्स कॉल्ड द हाइट एंड दैट्स हाउ वी कॉल दैट्स थ्री डायमेंशनल फिगर। तो याद रखिए स्क्वायर टू डायमेंशन है। क्यों स्क्वायर टू डायमेंशन है? क्योंकि स्क्वायर तो मैं बना सकती हूँ। ये देखो मैंने स्क्वायर बना दिया, टू डायमेंशन है। ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ, कितना ऊपर नीचे जा रहा है। तो दो ही तरीके हैं ना, मैं इसको या तो ऐसे बढ़ा सकती हूँ या ऐसे बढ़ा सकती हूँ, दो ही तरीके हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्क्वायर। इट इज द टू डायमेंशन। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एक लेंथ की अगर मैं यूनिट मीटर ले लूं और ब्रेथ की यूनिट अगर मैं मीटर ले लूं तो वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यार्ड में भी ले सकते हैं, हेक्टेयर में भी ले सकते हैं, एकड़ में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी यूनिट्स हैं। आई होप आपने ये चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा। नहीं पढ़ा है तो इसके लिए सेपरेट चैप्टर का वीडियो होगा आपके पास, आप उसको देखिए। कि अदरवाइज मैं यहाँ पे अगर यू नो इसके डिवीजन में चले जाएंगे तो थोड़ा सा टॉपिक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, थ्री डायमेंशनल मैंने आपको कहा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। आप ये देखिए एक रूम है, ये रूम का जैसा लग रहा है ना। ये आपके फ्लोर का लेंथ हो गया, ये आपकी एक वॉल हो गई, ये आपकी वॉल हो गई, दोनों वॉल जहाँ पे मीट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन। व्हाई इट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन? भाई थ्री डायमेंशन, लेंथ भी है ब्रेथ भी है, लेकिन लेंथ ब्रेथ के साथ साथ वी हैव हाइट ऑल्सो। क्या इस पेज की हाइट थी जब मैंने आपको पेज दिखाया था? बिल्कुल नहीं, इसकी हाइट ही नहीं है, बहुत थिकनेस है, बहुत पतला है। थिकनेस इसकी मैं इग्नोर कर सकती हूँ, बट क्या मैं इसकी थिकनेस इग्नोर कर सकती हूँ? नहीं, इसकी देखो हाइट है, ये देखो इस पेजेस के अकॉर्डिंग इसकी हाइट है, सो दैट्स कॉल्ड द हाइट एक्चुअली।
ठीक है, तो थ्री डायमेंशन समझ में आया। थ्री डायमेंशन थ्री टाइम्स थ्री तरीके से जा सकता है, लेंथ में भी जा सकता है, ब्रेथ में भी जा सकता है और हाइट में भी जा सकता है। सो क्यूबॉइड, वेरी 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 इजी। सबसे इजी जो शेप आपके पास आता है क्यूबॉइड आता है। क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। तो क्यूबॉइड को बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, रेक्टेंगल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं क्यूबॉइड, चलिए एक रेक्टेंगल देखो, हम सारे फेसेस रेक्टेंगल बनाएंगे, देखते हैं कितने फेसेस बनते हैं। ये दो रेक्टेंगल्स बना दिए और इनको ज्वाइन कर दीजिए। द मोमेंट ये आपके कमरे के जैसा बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किससे बना है, क्या यूज किया है हमने क्यूबॉइड को बनाने के लिए, रेक्टेंगल। तो देखो, थ्री डायमेंशंस को बनाने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, टू डायमेंशंस का। तो हमने क्यूबॉइड को बनाने के लिए कौन से टू डायमेंशन फिगर का यूज किया है, रेक्टेंगल का। अगर आपके पास सिक्स रेक्टेंगल हैं, आप एक काम कर सकते हैं ना, आप सिक्स ले लीजिए, मैं आपको इसका नेट दिखाती हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये देखिए, ओपन कर दीजिए, है ना। तो ये सारी जो सारी अगर इसको आप ओपन कर देंगे तो सब कुछ रेक्टेंगल आ रहा है ना। तो ये इसका नेट है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू 2D एंड 3D। तो क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं 2D एंड 3D के, टू डायमेंशन के वो सारे फिगर्स जो आप आज तक बनाते आए हैं अपनी कॉपी में, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन जिसकी 8 साइड, डेकागन, मैं कोई कितने भी, मैं ये सारे फिगर्स जो मैं यहाँ पे बना सकती हूँ, ये लो, ये सारे क्या हैं आपके टू डायमेंशनल फिगर्स हैं। ठीक है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री डायमेंशंस, तो क्यूब, क्यूब कैसा है, वो जो आप मैजिक क्यूब खेलते हैं वो, कोन आपकी बर्थडे कैप, सिलेंडर आपके घर का सिलेंडर, क्यूबॉइड आपका कोई भी बॉक्स, स्फेयर आपकी बॉल, प्रिज्म आपको पता है, पिरामिड आपको पता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इन सबका हाइट है, इन सबका हाइट है, मतलब ये सब फ्लैट नहीं है, थोड़े से उठे हुए हैं, थोड़े से हाइट है इनकी, ये बेस से थोड़े उठे हुए हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आती है हाइट और यहाँ पे हाइट नहीं आती, यही बेसिक डिफरेंस है। और आप इनको इजीली बना सकते हैं, इन द वन गो यू कैन मेक दिस, इन द वन गो यू कैन मेक दिस। बस इसको बनाने के लिए आप कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा आपको, 2 3 4 किसका, टू डायमेंशन फिगर को यूज करके आपका थ्री डायमेंशन फिगर बनता है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, चलिए लेट्स लर्न अबाउट 3D फिगर्स। ये कैसा है, 3D फिगर है ना, दिख रहा है आपको, बिल्कुल बिल्कुल, घर आपका 3D है। ठीक है, कहीं ट्राइंगल है, कहीं पे कॉम्बिनेशन से बना है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, स्क्वायर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ये बन गया। दिस इज ऑल्सो, ये देखो, ये भी देखो कितने सारे, ये देखो द मोमेंट इट इज